آج تو کل موقع جماعت والے محال بھی کے تو بالکل مطابق ایسے لکھنا چاہیے مرزا تھا صاحب سے ہمیں. سوال کوئی اٹھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادمیت کرتے ہیں. ہاں تو جماعت تم والے جاؤ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. شاطمیت کا رولہ ڈالتے رہو، ہمیں اس سے کیا. یعنی ہم تو جماعت والے کہتے ہیں بالکل جو ٹھیک انہوں نے کرتے ہیں. درست اگر لکھا کوئی ہے. مرزا صاحب پہ سوال اٹھاتا ہے تو وہ نبی کی شادمیت کرتے ہیں. اگر مرزا صاحب پہ کوئی سوال ہاں تو اٹھاتا ہے تو کرتے نبی رہیں، کریم صلی ہمیں اللہ اس علیہ سے وسلم کیا. کی شادمیت کرتے ہیں. مرزا صاحب نے خود بالکل صحیح لکھا ہے کرتے ہیں. کہ اگر جماعت حق والے بیان جماعت کرنے والے سے گالیاں نکالنا ہے تو ہم کیا آپ کی حق بیان کرنے تعلیمات میں سے رک جائیں گے؟ ہم بیان کریں گے. آپ کی کوئی گالیاں تعلیماتوں میں نکالتا ہے تو نکالتا رہے. یہ نہیں محبت کے ساتھ یہ تعلیمات نہیں ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی. اگر ان پہ کوئی بھائی سوال تمہیں اٹھائے گا کیا تو وہ پتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ تمہیں وسلم. کیا پتا ان باتوں کا. تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو کہ مرزا صاحب کا مقام کیا تھا. مرزا صاحب کا مقام آپ سے زیادہ میں بارش سمجھ کی سکتا ہوں. طرح ان کو اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتی تھی. تمہیں کبھی وحی ہوئی ہے کہ تم اٹھ کے تو ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دو؟ تم یہ کر سکتے ہو کہ آپ مجھے تم سمجھنے کی کوشش کرو سن لیں کہ انہوں نے دوستی کیا دوستی لکھا کر ہے، لیں. ان کا کیا مطلب تھا، تاکہ دیکھیے تمہاری اپنی دیکھیے ترقی انکل ہو، دوستی کر لیں. علمی روحانی ترقی ہو. اعتراض کرو گے تو سن لیں میری بات جو سن لیں پہلے نا. تمہارے پاس ہے اس سے بھی اچھا جاؤ دوستی گے. کر لیں. سن لیں میری بات. دوستی کر لیں. سن لیں میری بات. اگر اگر سن تو لیں. سن تو لیں. اچھا سن لیں نا. سن لیں. اگر عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ السلام کو ان کے لیول پہ گرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک انہوں نبی نے کو جو بچانے کے کیا لیے دوسرے درست نبی کی کیا. شاتمیت تمہیں کرنے سمجھ نہیں نہ آ رہی تو تم اپنی عقل ایک کا بات مجھے علاج جواب کراؤ. دیجیے بس. انہوں نے اپنے جو فہم کیا سے بالکل بتائیے. درست کیا، موقع محال کے حساب سے صحیح جواب دیا انہوں نے. اور اب بھی ہم یہی جواب دیں گے عیسائیوں کو جب وہ کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. اور دیتے بھی ہیں. ہم کچھ سے ڈرتے ہیں. جو جماعت کوئی والے آگے سے گالیاں نکالتا ہے نکالے، ہمیں کیا. اچھا چوہان صاحب سنیں. اب جب کوئی مرزا صاحب علیہ السلام پہ سوال اٹھاتا ہے تو جماعت والے پھر صحیح کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جماعت شاتمیت والے کرتے ہیں. کیا کرتے اس ہیں کا مجھے مطلب اس سے یہی غرض نہیں ہے. مرزا صاحب نے جو لکھا بالکل درست لکھا، موقع محال کے مطابق لکھا. اور کسر سلیب کرنا ان کا مشن تھا. اور انہوں نے ایسی کسر سلیب کی کہ مرزائی اب تک وہ اٹھ نہیں سکے. ہاں اور بڑھ ان گئے. کے خدا اور بڑھ کو گئے. مرزا صاحب نے زیادہ ہو مار گئے. کے محلہ اور بڑھ گئے. خانیار میں اور زیادہ زیادہ ڈال ہو دیا، گئے. جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے گناہوں کو لے گیا. مرزا صاحب نے کہا تمہارا خدا وہ مرا پڑا ہوا ہے. اس سے بڑی مسیح موعود علیہ عیسائیت کی السلام کسر سلیب کوئی اور عیسیٰ ہو کو سکتی مارنے ہے؟ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. مسیح موعود علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی اگر عیسیٰ ابھی علیہ السلام تمہیں باقی عقل نہیں ہے، تمہیں صحابہ سمجھ نہیں آئی تو تمہاری سمجھ کا قصور ہے. انہوں نے تو بالکل درست کیا جو بھی کیا. آج بھی ہم مجھے کہتے ہیں یہ کہ درست کیا انہوں نے. کون سی حدیث ہے کسی کو کون کوئی سی حدیث ہے تکلیف ہے تو جس وہ میں 14 صدی کا اپنی ذکر ہے تکلیف کا علاج کرے، مرزا صاحب کون اعتراض نہ سی کرے. حدیث ہے جس میں 14 صدی کا ذکر ہے کون سی حدیث ہے جس میں 14 صدی کا ذکر ہے حدیثوں کی تو کون کوئی سی حدیث ہے مرزا صاحب نے تو کہا حدیثوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. جس ڈھیر کو میں چاہوں صحیح قرار دوں، جس ڈھیر کو چاہوں رد کر دوں. تو حدیثوں کی بات ہی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مرزا صاحب کا مقام کیا تھا. ٹھنڈی سال ہو تم اس کے انکل متعلق کیا ٹھنڈی بات کر سال. سکتے ہو؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں ایک نبی کو بچانے کے لیے دوسرے نبی کی کردار کشی کیوں کی؟ اور تمہیں کیا اس سے؟ جو شخص فرق پڑتا اس ہے آپ چیز کے کو. لیے معمور ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی پا کر کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے نا کیسے جواب دینا. تمہیں کیا پتا؟ مسیح موعود علیہ السلام جس کے مسیح بن کر آئے تھے اسی کو گالاں اور کٹوائی. تو تمہیں تو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے نا. انہوں نے کیوں جو بھی سمجھائیں جواب دیا آپ سمجھائیں بالکل گا. درست دیا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے درست جواب دیا، اور آج بھی ایسا حملہ ہوگا تو ہم ایسے جواب دیں گے. اب یہ جو مسائل ہیں ان کا حل پھر علامہ صاحب سے سمجھنا ہے نا آپ نے. ہاں یہ انہوں نے ہے، آپ کو سمجھ کیوں ان کیا سے سمجھو. تو ان سے سمجھ لو پھر ٹھیک ہے. یہی چاہ رہے ہیں علامہ نا صاحب کہ تو ہمارے حالف ہے نا. ایک غلطی کا ازالہ علامہ میں صاحب وہ تو ہمارے کنفیوز مخالف نظر ہے. آتے ہیں. اس بات کا حل آپ نے نکالنا ہے، سمجھنا ہے علامہ صاحب سے تو سمجھ لیں ٹھیک ہے. ان کو موقع نہیں چوہان یہ غلطی صاحب. کا تالا میں نے پڑھی ہے. یہ غلطی کا تالا میں نے پڑھی. سن لیں حسینی انکل تسی سن لو ذرا. تسی بیچ میں لقمہ دے کے ساری بات خراب کر دیتے جی ہو. حسینی انکل بات یہ ہے کہ ایک غلطی کا ٹھیک ہے ازالہ جی. میں نے پڑھی اس کے اندر مرزا صاحب ٹوٹلی کنفیوز نظر آئے. کہیں انہوں نے ازالہ جس غلطی کا ازالہ کر رہے تھے وہی دعویٰ ٹھیک ہے دوبارہ کر دیا. اور اینڈ میں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ محمد کی چیز ٹھیک محمد کے پاس رہی. ٹھیک. اس کے علاوہ بڑا کچھ نہیں صحیح سمجھ میں نتیجہ آیا مجھے. نکالا آپ نے، بہت اچھی بات کی آپ. ہاں تسی بہت بولو اچھا کی کیا آپ نے، بولنا ہے. ٹھیک تسی سمجھ پورا گئے. قلم تو نکالو میرے کہنے پر میں قلم تو نکالو. یہ جناب ایک تو کہہ رہے ہو کہ میں ان کو ماننے والا ہوں، پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کنفیوز ہیں. تو کیوں ایسی شخص کو تم مانتے ہو؟ مہربانی کرو ہمارے اوپر، نہ مانو ان کو.
चौहान साहब जज्बाती ना हो, चौहान साहब जज्बाती ये ना हक हो। सवाल उठाने का डेमोक्रेसी है। अगर इस कंट्री में रहता हूँ ना मैं, अपनी डेमोक्रेसी है एक यहाँ पे। गलती का जाला का इस खुलासा कंट्री चौहान में साहब रहता आप हूँ मैं, डेमोक्रेसी है, मुझे हक है। ये पाकिस्तान ऐसा नहीं कर है सकता हूँ, एक बिल्कुल। मिनट रहील चुप कर, रहील आप तो चुप खुलासा करें सुनो, ना। ये आपका खुलासा सुनो। सुना दे एक गलती का जाला का। एक एक गलती मिनट का रहील जाला सुनना, जरा खुलासा सुनना, दो हाँ, दो मिनट के अंदर ये बयान ਤੁਹਾਡਾ करेगा। पाकिस्तान नहीं है, ये ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान नहीं है, सवाल उठाने की हक नहीं है हमें। ये ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान नहीं है, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ सवाल उठाने का हक है, यहाँ मैं उठा सकता हूँ सवाल। ये और ਤੁਹਾਡਾ भाई तुम पाकिस्तान नहीं सवाल है। जितने मर्जी उठाते रहो, लेकिन जब तुम सवाल इस तरीके से उठाओगे कि मिर्जा साहब कंफ्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि तुमने मिर्जा साहब का इनकार कर दिया, तुम उनके मुकाम को पहचाने ही नहीं हो, वो सही कह तो रहे तुम्हें हैं। हक ही नहीं है कि उनकी किताबें पढ़ो। कोई भी नया ऐसे बंदा कंफ्यूज होगा वो शख्सों की यही तुम क्यों कहेगा। पढ़ते हो? तुम्हारा तो वो कुछ नहीं लगता। चौहान साहब, चौहान साहब, हमें कहा कोई गया भी था नया सिर्फ कुरान बच्चा पढ़ो। होगा वो यही कहेगा कि ये हमें कहा गया कंफ्यूज। था हाँ तो कुरान पढ़ो, कंफ्यूज है तो मिर्जा ठीक साहब है, हम कब कहते हैं अभी मिर्जा इतने साहब सारे की लोग बात मिर्जा करना साहब के शुरू कर मुनकरीन हैं, जहन्नम में जा रहे हैं इस वजह से, तो तुम भी उनके साथ मिल जाओ। उनके पैरोकार भी तो कंफ्यूज हैं कि नहीं एक गलती का जाला को लेकर? नहीं, बताएं हम तो आप। कोई नहीं कंफ्यूज। नहीं आप नहीं, कादियानी कंफ्यूज हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ तो confused वो तो हम तो समझते हैं कि वो उनके मानने वाले ही नहीं है। नहीं, एक गलती का जाला से जो आप खुलासा बयान करने लगे हैं, हाँ। ये खिलाफत ग्रुप भी वही मानी बयान करेगी? नहीं, वो जो मर्जी बयान करें, नहीं मैं तो वैसे आपका और उनका फहम सेम है एक गलती का जाला के बारे में? नहीं, सेम नहीं है। सेम नहीं है। इसका एक मिनट रही, एक मिनट, इसका मतलब ये है अगर आप कुछ और मानी निकालते, 12 सफ़े का टोटल रसाला साहब ने जो कुछ लिखा हुआ है, आप उससे कुछ और नतीजा अखज़ करते हैं, हाँ। लाहौरी कुछ और अखज़ करते हैं, कादियान खिलाफत ग्रुप कुछ और अखज़ करती है। इसका मतलब तो सही वो कह रहा है कि मिर्जा साहब ने जो तहरीर लिखी है वो कंफ्यूजिंग है। नहीं, समझ नहीं ये आती इससे क्या ये लिखा है। नतीजा नहीं निकलता। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए थे, कुरान मजीद 1400 साल पहले आया है। आज भी सारे मुसलमान कंफ्यूज्ड हैं ना, इसीलिए मुख्तलिफ फिरके उन्होंने बनाए हुए हैं, आयात से मुख्तलिफ तर्जमे निकालते हैं। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कुरान का दूसरी कसूर ज़बान- नहीं है, दूसरी ये जो ज़बानों से- कंफ्यूज्ड लोग हैं उनका कसूर है। मेरी बात सुनना, वो तो दूसरी जुबानों में है, ये तो इनकी मादरी जुबान है, उर्दू में लिखा हुआ एक गलती का हाँ, जाला। मादरी जुबान में बेशक हो, उर्दू कुरान मजीद के उर्दू में तर्जमे नहीं हुए, लेकिन वो तर्जमे भी मुख्तलिफ हैं, नहीं तर्जमा क्योंकि करते हर हुए किसी तो को वो बात मुस्लिम ही नहीं समझ आ रही जाती, है। तर्जमा करते लोग हुए। कंफ्यूज्ड हैं कि कुरान का असल पैगाम क्या है, नहीं तो लोगों वो को पता उनकी दिमाग का कसूर है, कुरान का कसूर नहीं है। अंकल इसी तरह मिर्जा साहब ने तो बड़ी क्लियर बातें की हुई हैं, फिर भी कोई कंफ्यूज है तो उसके दिमाग का कसूर है, मिर्जा साहब को कसूर तो नहीं। अच्छा, जो क्लियर बातें ये की सवाल हुई उठाने हैं, का पूरा मेरी हक बात है। सुनो। कितने लोगों को सवाल समझ उठाने आई का है वो पूरा क्लियर हक है। बात? एक गलती का जाला कितने लोगों को सही पता है उसका माने? मुझे पूरा राइट है 200 सवाल आदमियों उठाने का। हैं? आपका पाकिस्तान 200 नहीं है। आदमियों को। सिर्फ 200 आदमियों को करा एक देते, मार गलती का देते। जाला समझ आया है, हाँ जी, बिल्कुल बाकी सारा ये समझ तो आ गया ना। खिलाफत इसका ग्रुप मतलब उसका कसूर नहीं है, कसूर लोगों का है। सबकी अपनी नफसानी ख्वाहिशें हैं जो उसके हिसाब से वो तर्जमे करते हैं। इसी तरीके से कुरान के साथ हो रहा है, 20 हर कोई करोड़ अपनी तलबा, मर्जी के मुताबिक तर्जमा करना चाहता है ताकि उसके फवायद उसको मिले। जिस उस्ताद के 20 करोड़ स्टूडेंट हों उसमें से 200 स्टूडेंट पास हों, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हाँ, हमारा जिगरा देख हम फिर चंद कसूर नहीं, स्टूडेंट्स का कसूर है। 20 ऐसे ही करोड़ जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी हैं, यानी 95% लोग जहन्नमी हैं जो अपने वो आप को जहन्नमी- मुसलमान कह रहे जहन्नमी हैं। तो वो किस तो एक वजह से? वहीद है ना। किस वजह से? भाई वो कि इसलिए अल्लाह नहीं है और कि उसके उनको समझ- रसूल और उसके सहाबा की तर्ज मस्तियां को स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़े जूम है ना। शैतान ने पहले दिन वादा किया था कि मैं तेरी इस मखलूक को, मैं इंसान को गुमराह करूंगा, इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, और क्यामत के दिन 999 जहन्नम में जाएंगे। सदके जावा, बस यही गल है। अभी आपने कहा 200 किमें हो गया, तो इसका मतलब नहीं, 99% जहन्नम में जाएंगे, तो 1% ही सही होंगे ना। साहब मेरी बात सुने ना, कलीलुम मिन उसका- इबादिश-शुकूर। बात तो सुन लें। उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को अल्लाह का पैगाम समझ नहीं आया, उसका मतलब ये है कि लोग अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, तो जिनको कंफ्यूज है ना, जो एक गलती का दालत है, वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूज ये है। मिर्जा मिर्जा साहब की तहरीर में कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं है। ये नफसानी ख्वाहिश के पीछे दौड़ रहे हैं मिर्जा। हाँ जी, नफसानी ख्वाहिश इनकी क्या है? इनको है कि मिर्जा साहब को हम जबरदस्ती नबी बना दें और अपनी गद्दी चलाएं, खिलाफत की गद्दी। ये इनकी नफसानी ख्वाहिश है, इस वजह से वो कंफ्यूज है। लाइन पे आ गई है ये तो अपनी मिर्जा लाइन पे साहब आ ने गए। तो कहा ही नहीं कि मैं नबी हूँ। वो खुद मिर्जा साहब ने अगर मिर्जा साहब ने नहीं तो कहा, कहा ना नया नबी आ सकता है ना पुराना, मेरी लेकिन बात- कंफ्यूज है ना उनको नबी बनाने के चक्कर में।
اس وجہ سے انہوں نے ایسا غلف کیا ان کی ذات کے متعلق. تو یہ وجہ ہوتی ہے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو کنفیوز کرتی ہیں انسان. میری بات وہاں پر تعلیم کلیئر ہے. یہاں بھی تعلیم کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب نے صرف اتنا کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتا, مکالمہ مخاطبہ الہیہ وہ جاری ہے, اور جو پاک اور معمور ہو جائے وہ مجدد ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے. اتنی سی بات ہے بس. ایک 10 سیکنڈ کا میں موقع دے دیا کرو. اللہ تعالیٰ کا پیغام بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہے. زنا کے قریب نہ جانا, چوری کے قریب نہ جانا, فحاشی کے قریب نہ جانا, لوگوں کا مال نہ کھانا, ہاں جی بدنام نہ کرنا, شراب نہ پینا, جوا نہ کھیلنا, حرام مال نہ اکٹھا کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, کلیئر ہے. لیکن ان سب باتوں کو لوگ برائی سمجھ کر اپنی خواہش کے لیے وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا ہے کہ زنا کا کیا مطلب ہے, شراب کا کیا مطلب ہے, جوئے کا کیا مطلب ہے, خنزیر کے گوشت, یہ نہیں کہ ان کو کنفیوژن ہے. نہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ وہابی کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے, تو وہ کہاں سے وہ دلیل لے رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں مجھے بات. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نبی کی تعلیم خراب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک غلطی کا ازالہ نہیں سمجھ پائے, کیا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ایک غلطی کے ازالہ میں کیا کہے گے, اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں حرکت؟ جی جان بوجھ کے کریں. اب دیکھیں نا, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو اوپر نبی کے نام کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے. لیکن جماعت احمدیہ والے کہتے ہیں مرزا صاحب کو امتی کہنا کفر عظیم ہے, 4 سال تک تو آپ خود کنفیوز رہے ہو, کیونکہ وہ مرزا صاحب تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے ہیں. اگر آپ اس کو امتی کہیں گے تو کفر عظیم ہو جائے گا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ نفسانی خواہش نہیں تو اور کیا ہے؟ رحیل صاحب کا سوال یہ ہے چوہان صاحب آپ کے لیے, آپ کتنے سال تک ایک غلطی کا ازالہ کو لے کر خود کنفیوز رہے ہیں اور نبی مانتے رہے؟ کتنے سال؟ 50 سال. ابھی پتہ لگ جاتا ہے, لقمہ پڑا رہے ان کے منہ پہ 50 سال تک. دیو جی چوہان صاحب جواب, وہ تو نفسانی خواہش میں مبتلا ہو کہ تو سمجھ نہیں سی آ رہی. کچھ نہیں تھا ان کے منہ پہ. اگر یہ سوال درست مانا جائے تو پھر مرزا صاحب 50 سال کنفیوز رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان بٹھا یہ آتا ہے ان کو, وہ کیسے کنفیوز رہے؟ انہوں نے 10,000 دفعہ قرآن پڑھا تھا, ان کو 30 آیتیں نہیں نظر آئیں قرآن کی. وہ تو اس وجہ سے نہیں نظر آئیں. وہ تو ریل پہلے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کنفیوز ہیں, ایک غلطی کا ازالہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے. نہیں, مرزا صاحب کنفیوز نہیں. مرزا صاحب نے کہا ہے مجھے جب اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتایا تو میں نے اپنا جو عقیدہ تھا بدل دیا. اسی طرح جب مجھے سمجھ آئی تو میں نے اپنا بدل دیا. تو یہ کہنا کہ جی تو پہلے غلط تھا اس دفعہ سے ہم تو ہمیشہ غلط ہی رہیں, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو یہ تانا دیا جائے گا کہ تو پہلے کیوں تھا یہ. اب جتنے بت پرست تھے جو کافر مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے, ان کو تانا دیا جائے تم تو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے, لات منات کی. نہیں, ہم تانا نہیں دے رہے چوہان صاحب. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی سوال کہ جی تو پہلے 50 سال کنفیوز رہا تو ٹھیک ہو گیا تھا, مطلب تو انہیں کنفیوز ہی رہنا چاہیے. سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اس وقت نفسانی خواہش میں مبتلا تھے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں, اس وقت بے علمی کی حالت تھی, جاہلیت کی حالت تھی. کچھ لوگ جاہلیت کی وجہ سے غلط پیغام سمجھتے ہیں, کچھ لوگ نفسانی خواہشات کی وجہ سے. نفسانی خواہش والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیغام کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, اور جو جاہل ہوتے ہیں جو خود نہیں پڑھنا چاہتے یا پڑھ سکتے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب منبع نفسانی خواہش ہی ہوتا ہے. لیکن سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ پروپیگیٹ کیا کرتے تھے فیس بک پر, واٹس ایپ پر کیا کرتے تھے مرزا صاحب کو نبی منوانے کے لیے؟ ہاں کرتا تھا, میں تقرینہ بھی کرتا تھا بلکہ. ہاں, تو اس وقت آپ نفسانی خواہش میں مبتلا تھے کہ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں اس وقت جاہلیت میں تھا. نفسانی خواہش والوں نے مجھے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. تو ان کو بھی جاہل کہہ لینا, ان کو یہ تو نہ کہیں یہ نفسانی خواہش میں مبتلا ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو جاہل ہی کہہ رہا ہوں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاہل, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ مرزا صاحب کا مقام کیا ہے. تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ان پر یہ اعتراض کرو. نہیں, میری بات سنیں, میں یہ نہیں اس کو کہہ رہا کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم یہ کو ایسا انہوں نے کیوں لکھا, یہ آپ بات نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے, میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا جیسا انہوں نے لکھا. اگر پہلے سے آپ کہیں کہ انہوں نے لکھا یا ان کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا تو وہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟
चौहान साहब, समझने आप की बात कोशिश ही करूंगा दूसरी उससे तरफ देखें। जो सबसे बड़ा मुखालिफ है। मैं इनकी कह रहा हूँ अठवाल साहब की कि अगर इनको एक गलती का मेरे ज़्यादा बात समझ नहीं आ रहा, साहब मेरी बात ना बीच में अगर लेके ये आप मेरी मिर्जा दुखी साहब को हैं। नबी मान रहे हैं, अमन सारा नजीर साहब खिलाफत मेरी ग्रुप, बात ना लेके आए, मेरा नाम ना लें, आप अच्छा मेरी ठीक दुखी है, हैं। चले इनका नाम लिए तो बगैर, अमन अपने नजीर साहब जवाब आप खुद मेरी दे देंगे। दुखी हैं। ये जाहिल कह लें इनको, इनको समझ नहीं आ रही है एक गलती का ज़ाला। अमन नजीर साहब आप मेरी दुखी हैं, आप ये बात ना करें। मैं दुखी है। हाँ जी, आपकी दुखी राइल एक है, आप गलती मेरी का दुखी अदाला हैं। 12 का पेज है, एक गलती हैं का चौहान अदाला 12 साहब, का पेज है। इसमें मिर्जा इन्होंने साहब ने जाहिल किस गलती का समझो, अदाला इन्होंने किया? नफसानी ख्वाहिश का मरीज ना समझो है। जी मैंने आपको यही बताया कि नफसानी ख्वाहिश वाले जो होते हैं ना, वो मिर्जा साहब जाहिलों को अपना अलैहिस्सलाम पीछे ने लगा किस लेते हैं। गलती का हम भी अदाला लगे किया? हुए थे, 12 मैं के तो पेज मानता हूँ में इस चीज को, इस चीज का मैं बार दूसरे बार तो इकरार भी दुखी हो कर रहा हूँ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ कि ਨਹੀਂ मैं भी ਸਮਝਦਾ ऐसे ही लोगों में था। सैनी साहब ਨੂੰ बोलन दो, सैनी साहब ਨੂੰ क्या सर? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ पता नहीं ये दसोगे जो कह रहे हैं। दुखी नहीं है, दुखी हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ दुखी कह रहे हैं, दुखी नहीं ਇਹ कह रहे। ਜਿਹੜੀ दुखी, दुखी। ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਖੀ ਵੇਖੀ ਜੇ ये गलती का अदाला नहीं, मैंने नहीं बताया। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने गलती सैनी साहब कौन सी ਹੁਕਮ गलती ਦੀ का ਦੁਖੀ अदाला ਹੁੰਦੀ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਸੀਬ ਚ, पता जे? हाँ जी, नहीं। दुखी का मतलब है छोटा। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं 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 दुखी का मतलब है एजेंट, अच्छा, नहीं यानी पता। एजेंट है उधर। हाँ ਦੁੱਕੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਖਾਇਫ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਯਾਦੋ ਫਾਤਿਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੱਪੂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਨ मैं सर पे कुरान चुप कर कहना, मैं सर पे कुरान चुप कर कहना, आमिर नजीर को मैं प्राइवेट में कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, कभी बात नहीं हुई। सर पे दोनों झूठ मैं बोल रहे, कहना- दोनों झूठ मैं बोल कहता रहे। हूँ अमन नजीर कसम उठा के झूठ बोला आखो तो बस आखो अगर ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ काज़िबीन, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ। काज़िबीन। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਹਾਂ मैं कह तो रहा हूं, आप मुझे बताएं, ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਗਜ਼ਬ मैं ਪਵੇ। कह तो रहा हूं तुसी बोल रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और कह अदाला 12 सालों का साला, एक गलती का अदाला में मिर्जा साहब ने कौन सी गलती का अदाला किया है मुझे बता दें, वो खुद कंफ्यूज नजर आए हजरत हाँ साहब। मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपका इल्मी सवाल है। उसमें जिस गलती का इजाला था ना वो ये था कि जिस शख्स ने, सुनो, समझ लो चौहान साहब समझाना हाँ जी। चाहते हैं एक गलती का ज़ाला, सुनो। हाँ जी, जिस शख्स ने ये कहा था ना इस जवाब में कि मिर्जा साहब नबी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तुमने दुरुस्त बात नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला की वही में मेरे लिए नबी रसूल मुरसल के अल्फाज आए हैं, और उससे मुराद क्या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से फैज़ पाकर मुकालमा मुहासबा इलाहिया क़यामत तक जारी है। तो ये कहना, जब कहा जाए ना कि वो नबी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो मामूर और मुल्हम नहीं है। ये दोनों बातें बीच में आ जाती हैं। तो इस हिस्से की उन्होंने तरदीद की कि नबूवत तो अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन मुकालमा मुहासबा इलाहिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से उम्मत मोहम्मदिया में क़यामत तक जारी है। नबूवत बंद है, अजाला किस चीज का किया? अजाला किस नबूवत चीज़ का बंद किया? है, हाँ। नबूवत उन्होंने बंद कहा है। नबूवत नबी का तो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी का नाम भी नहीं दिया जा सकता, कसर शान होती है उनकी खत्म नबूवत की। ਇਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ है। मिर्जा साहब हाँ, ने तो मैं अजाला यही किस कह रहे हैं, चीज़ का जाहिलियत है ना। हकम अज़ल साहब कह रहे हैं ना नया नबी आ सकता है ना पुराना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी का नाम देना उनकी कसर शान है। ਇਹ ਤੇ तो ਅਮਨ उन्होंने नजीर जेड़े किया? उन्होंने दे मनन वाले जेड़े ने वो कह रहे हैं नबूवत जारी है। अंकल ਇਹ नबी अब कितने जारी है, कितने जारी है? मानते हैं झूठ है बस। नबी और रसूल माना अमन नजीर साहब ही मानते हैं। अजाला किस चीज का किया है? मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने इसमें अजाला किस चीज का ये किया ना है? सारे बताया, का अब देखो ना तुम्हारी अकल इतनी छोटी है कि तुम्हें सारे समझ नहीं आई कि मैंने क्या बयान किया। ये हाल है तुम्हारा। ये लामा नजीर साहब इसको रात को समझाएंगे प्राइवेट कार पे, तब इसको समझ आएगी। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं सर पे कुरान चुक के कहना, मैं आमिर नज़ीर साहब को कभी सईद बात साहब नहीं अब की। आपको को बात समझ आ गई है या आप खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज हुए हैं और बाकियों को मैं बिल्कुल confuse कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की तरह कंफ्यूज ही हूँ। वो कंफ्यूज हैं और आप भी कंफ्यूज हैं या आप जी कंफ्यूज निकल गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मैंने निकल 12 गए? साल का हुसैन साहब मेरी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਦਦ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਹੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
कहीं मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं नबी हूँ, कहीं कि मेरे जाहिल मुखालिफ मुझे नबी कहते हैं। ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੇ ਖੁਦਾ ਕਰ बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ए लिखे ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਿਫ, ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। अब खुलासा इस तहरीर का ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इसके अंदर जाहिल ये मुखालिफ के इल्जाम लगाते हैं कि ये शख्स। रहील चुप कर। तो सानी साहब किताब लिखी क्यों गई सी? हाँ जी, रहील म्यूट ला जरा। एक किताब रहील म्यूट ला। एक किताब इस रहील वास्ते म्यूट ला लिखी मेरा गई भरा। है, एक किताब इस वास्ते लिखी गई है, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि सारी किताब तो इस सारे मजमून तो अब खुलासा इस तारीख का ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गोया ये शख्स दावा नबी या रसूल होने का करता है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। सुभान अगे अल्लाह। अगे की कहने ने ये है खुलासा। अगे की कहने खुलासा अगे भी है। नहीं वो अगे भी है, पीछे भी सारी किताब पढ़ते नहीं रहो, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं ऐसा ना करो। उन्वान है तो वो जिस सानी तरह साहब एक ऐसा ना गलती का करो। हवाला है ना, ਤੁਸੀਂ ਦਜਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਅਗਲੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਹਾਂਜੀ बेशक ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਪੂਰਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਨਾ ਮੰਨ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो तो थोड़ा ही होता है ना, सारी किताब तो नहीं होती खुलासा। असल खुलासा यही है सैनी साहब जो आपने बयान कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, यही खुलासा है। अली अहमद साहब पोस्टर मोटा सा लिख कर लगाएं कि हमें एक गलती का अजाला समझाएं। यहाँ मोटा सा लिख कर लगाएं कि हमें एक गलती का अजाला समझाएं खुदा के लिए, क्योंकि जो सैनी साहब बात करें बात ऐसे ही है। ये बात एक मिनट रहील, एक मिनट यार, और रहील कंफ्यूजन बढ़ गई है। हाँ रहील एक मिनट है। अमन नजीर जो लानतुल्लाह काज़िबीन, अगर इससे आगे मिर्जा साहब ने कोई अपने तौर पे जो जिस दौर का नबी कहलाने से मैंने कहा है, अगर वो नहीं लिखा हुआ और आप नहीं उसको पढ़ रहे सुन लो, तो लानतुल्लाह काज़िबीन। हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ ना, सुन तो लेना। जिस तौर से उन्होंने खुद को नबी और रसूल कहा है, हाँ जी, क्या उसका एक मिनट है जो मेरी हम भी उसी तौर से समझते हैं। यार बात तो कर लेने दें। जिस तौर से उन्होंने कहा है कि इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ, हाँ जी, वैसे ही हैं। उस तौर से हम वैसे ही समझते हैं। यार बात तो कर लेने दें। जुमला तो पूरा कर इतना। जिस तौर से उन्होंने अगली लाइन में कहा है कि हाँ इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ, वो अगली लाइन मिला के पढ़े ना यार बात तो कर लेने दो खुदा के लिए। नहीं, आप नहीं कर रहे सही बात। जो सैनी साहब ने पिछली बात की है ना, दो लाइन मैं सैनी साहब की बात मुकम्मल करने लगा, मुझे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ यार, मुझे फिक्रा तो पूरा कर लेने आप देना ऐसे है। करें, उस सैनी साहब की बात जो उन्होंने कही है पहले पढ़े, फिर उसके बाद मैं पूरे मेरे मुझे ज़बानी याद है सारा, एक गलती का ज़ाला। पढ़े, फिर जहाँ सैनी साहब शुरू किया वहां से पढ़े। आपके सामने मैंने एक सवाल रखा था, लैसा मोहम्मदुन अबा बस भाग गए, दुनिया बस अमन नजीर है, पढ़ नहीं सकते, मौत क्या लिखा पड़ हुआ गई है? आपको, बस ठंड पड़ गई है। जवाब नहीं दे सके, आज तक बता नहीं सके वो कौन से रिजालत दुनिया, कौन से रिजालुल जो आखिरा। आधा फिक्रा छोड़ के आधा फिक्रा पढ़े। लानत है उस शख्स पे, वो बच्चा सही कह रहा है, ये कंफ्यूज लिखी हुई है सारी तहरीर। लानत है उस शख्स पे जो आधा फिक्रा छोड़ के आधा पढ़े और फिर क्या कंफ्यूज है। लानत फिर उस पे भी डालें जो उसको दूसरा पूरा पढ़ के बोलने बताएं। नहीं देता, हथी पड़ उसको जाता पूरा है। पढ़ के बताएं। पूरा पढ़ दो। लो जी, पूरा सुनो जी, चुप कर एक मिनट, रहील में पूरी गल करने लगा। जो मिर्जा साहब ने ये लिखा है, जो सैनी साहब ने पढ़ा है, कि अब इस सारी तहरीर का खुलासा ये है, मतलब मेरा ये है इससे कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गोया ये शख्स नबी और रसूल होने का दावा करता है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। यहाँ ये बात मुकम्मल हो चुकी है कि उनका दावा नहीं, आगे चलें। ओ भाई करता हूँ, आगे वाली भी करने लगूं, अगर मैं छोड़ मुकम्मल नहीं दिया तो हुई मेरे- है, अभी तो जरा मुकम्मल करते हैं बैठ के। उसके आगे फिर नबूवत का दावा नहीं कर यार, दिया। ये नहीं बोलने तो सैनी साहब, ऐसे तो नहीं ना बात हो सकती है। आप जो लिखा नहीं है वो कह रहे 5 हैं। दफा मैंने ट्राई किया, ये बंदा मुझे बात नहीं पूरी आपने करने कहा ये बात मुकम्मल हो गई और नहीं हुई है, आगे पढ़े। अगर मैंने गलत कहा तो आप अपनी टर्म में बता लेना कि मैं अगला हिस्सा पढ़ने लगा हूं ना। तो आप बीच में आपने आशिया डाल रहे हैं ना, अब बीच में आशिया क्यों डाल रहे हैं? करने दे इनको। फिर आशिया ना मैं डाले बीच शेयर में। ना करें, मतलब पूरी
हाँ आशिया ना डाले, आशिया पूरी ना बात करे पढ़े। अल्लामा साहब, बात फिर करें। मैं उसे नतीजे ते पहुंच के चुप कर जाना भी लिखने वाला भी कंफ्यूज ते पढ़ने वाला भी कंफ्यूज। तो ताड़ी जो दिल करता है आशिया करो, राही ना करें। या मगर मैनू बोलन दियो ते आशिया या राही मैं ना फिर करें। ऐसे नतीजे ते पहुंच जाना कि लिखने वाला भी कंफ्यूज ते पढ़ने वाला भी कंफ्यूज। सर तुसी जिस मर्जी पहुंचो, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन रोक सकता फिर मैनू पूरी गल ते कर लें दो ना, जे मैं गलत है? करांगा ते तुसी मगर देखो मेरी अमन बात- साहब अच्छी गल करके ये ना कहो कि अच्छी गल खत्म हो गई है, यार जे ये ना अगर कहो। मैं अल्लामा साहब अपनी गल पूरी करो। अगर मैं झूठ ही बोल अल्लामा साहब दिता अपनी है, गल पूरी करो। अगर मैं झूठ ही झूठे बोल बोले नहीं दिता है, दिया ना थे, झूठे अगर- बोले झूठे की जबान वाह ओ खोलो भाई पढ़ने देना। ओ भाई ओ उसे टाइम वाल साहब इसको पढ़ने ਉਹ दे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਪਈ ਇਸ 12 ਸਫੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। वाल साहब इसको पढ़ने दे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ पढ़ने ਮੌਤ दे, ਵਾਕਿਆ इसको ਹੋ पढ़ने ਗਈ दे। एक दोबारा गलती पढ़ो, का ज़ाला, आशिया ना ਤੁਹਾਡੀ पाना मौत है। पूरा पढ़ो, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ आशिया ना ਸਾਹਿਬ पाना confused बेच ਨੇ। अमन ने आशिया ना पाना के बदे पूरा हो ਮੈਂ गया ਕਹਿੰਦਾ जुमला। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ गलती आशिया का ना पाना ज़ाला। थे जुमला पूरा हो गया। पूरा पढ़ने दें। अल्लामा साहब आशिया राही ना करे। अल्लामा आशिया ना साहब पाओ आशिया राही बेचे, ना यही- करें। यही कह रहे हैं। इसको पढ़ने दें। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ वाल साहब को ਇੱਥੇ पढ़ने ਗੱਲ दें। ਮੁਕੰਮਲ अल्लामा ਕਰ साहब ਦਿੱਤੀ क्या ਹੈ ਕਿ ये जाहिल आशिया मुखालफ राइल, मेरे ये से आशिया डाल रहे हैं, ये आशिया डाल रहे कंटिन्यू हैं। करें। अल्लामा साहब, अल्लामा साहब चुप करें, आप म्यूट लगाएं। चले उनको अल्लामा कहें साहब आशिया ना कंटिन्यू करें, डालें। आशिया राही नहीं कीजिएगा, आशिया ना डालिएगा, पढ़ें। हाँ चलिए, शुरू आगे करें। पढ़े। मिर्जा साहब ने ये बात यहाँ पर मुकम्मल कर दी नहीं है। की यहाँ पे मुकम्मल, झूठ कह रहे हैं आप। मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल कर लिया। बोलने दें। अठवाल साहब इनको बोलने उनकी दें। यार अठवाल साहब, अल्लामा उनकी साहब पूरी बात करें। तो पूरी होने दो सर ना, पूरी बाद करें, में मगर आप बीच में इतराज आशिया कर ना लें। डालना। तारिक से अब तो आंसर बाद आपको में ही आप पता है। इतराज कर लें, किसी को बोलने तो दें। अल्लामा साहब, आपको ही पता है कि अल्लामा वो साहब बात वो जारी अपना रखें। आशिया हाँ तो डाल रहे हैं, आप किताब पढ़े उसके ना। ऊपर इतराज कर लें बाद में जब आपकी बारी आएगी। अगर अगर उनको बात देखिए, पूरी मेरे करने साथ दें। किताब है, हम पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मैं भी बताता हूँ आशिया क्या होता है बीच में, उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, चलें आप पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं। मैं चलो पढ़ आप देता हूँ। पढ़ के सुना दो। मैं पढ़ तो देता खुद अगर मैं बात करने देते तो मैं ये बात करने लगा हूं अगली भी, लेकिन इनमें हौसला ही नहीं है सुनने। मगर सर हमने से ऐसे ना करेंगे, बात पूरी हो गई है, ऐसे ना अल्लामा करें। साहब आप चुप अगर करें। मैंने अठवाल ये साहब कह आप दिया है कि ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई है, तो मैंने कौन सा ऐसा शिरक कर कौन सा दिया जिसकी इसमें किया माफी- जुर्म है भी, ये हाँ। उनका ख्याल है, वो अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, ना आप करें, मेरे कॉन्ट्राडिक्ट साथ कर लें किताब है, उनसे। अपना ख्याल क्यों पेश कर रहे हैं। अरे भाई कोई भी पढ़ लो, कंफ्यूजन तो अपना रहेगी अपना इसके अपना अंदर। ख्याल पेश करें। वो उनकी क्या कहते हैं, अहमद रजा खान बरेलवी की तहरीरें पढ़ के। अच्छा आप पढ़ ले, मैं म्यूट करता हूँ। आप ये कंफ्यूजन दूर करके दिखा दे रहील साहब। चले पढ़े, कौन पढ़ रहा है, जल्दी पढ़े। हाँ जी रेल साहब, सवाल किया आपका, सवाल करें दोबारा। सवाल यही है कि कंफ्यूज आप कंफ्यूज ना जो करें तहरीर यार, है। अमर साहब उसको करने दें। फोकस रस्सा दे सिरे ते गंढ। हाँ कहते समझ नहीं आती क्या लिखा है मिर्जा साहब ने इसमें। हाँ बताएं क्या समझ नहीं, कौन सा लफ्ज या कौन सा फिक्रा समझ नहीं आया। अच्छा अठवाल साहब, अब तो आप तुसी चुप करो। अल्लामा कौन सा साहब, फिक्रा समझ नहीं आया ये बताओ राहिल। ये गलती का ताला पूरा पढ़ो, उसके बाद आशिया राही करेंगे। चलो पूरा पढ़ते हैं, चलो पूरा पढ़ते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। ओए, ये अल-इस्लाम। 1000 दफा पढ़ा गया है, पहले 1000 दफा इस ब्राड में नहीं पढ़ा। भाई, सर वो कह रहा पढ़े पूरा, तो आमिर साहब आपको क्या पढ़ो, हो रहा है। पढ़ो। मेरी तरफ से आशिया राही ना करो। वो कह रहा पढ़ो पूरा। आशिया राही ना करें। ओ भाई वो कह रहा मेरे पूरा लो आशिया राही ना करें। मेरी तरफों ने आख्या भी 3 एतवार सलाम करके आ, ते उन्हें आख्या मैं करके आया, मेरे वाल झड़ नहीं खलोता। उन्हें कहा 3 एतवार और जा। मेरे लो तुसी रोज पढ़ो, मेरा की तरह दे। वो सर- अल्लामा साहब पढ़ें। आमिर अल्लामा साहब राहिल साहब पढ़ें। कह रहे हैं पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ पढ़ो, लेने। पढ़ो। अल्लामा साहब पढ़ें। आशिया राही ना मैं करें। पढ़ता हूँ राहिल साहब, वो तो मुखालिफ है, वो तो अपना 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 उसमें फैम निकाल के पेश करेंगे, अपने हाशिए डालेंगे। हम मानने वाले, हम बताते हैं क्या लिखा है। चलें आप पढ़ें, चलें आप पढ़ें। हाँ ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें, मुझे वो निकाल लेने दें। ये एक गलती का ज़ाला नहीं है, ये मौत का पैगाम है। ये देखें अमर साहब, यार एक मिनट चुप नहीं बैठ सकते, बंदे को समझ आने लगी है तो बीच में बोल पड़ते हैं। खुदा का नाम लो। मैं बिल्कुल तो खामोश। सर आपकी दुखी है, उसका फोन पर समझा लेना यार। भाई मैं मुझे पता है आपकी मेरा दुखी ना है। फिक्र करो। मुझे पता है, मैं भी उनको 10 मरतबा पढ़ चुका हूँ। मुझे सिर्फ उसमें एक ही बात नजर आई है, शुरू में जाहिल मुखालिफ और लास्ट में। हाँ जी पढ़ें। जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि गोया इस शख्स ने नबी और रसूल होने का दावा किया। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। कोई बंदा ये लिख कर वो आगे पढ़े ना, अब हाशिए डालने लग पड़े हैं। क्या आगे इसके साथ का जुमला लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, आगे अगर मैं आशिया नहीं पढ़ूंगा करें, आप पढ़ें। इस बात की निगेशन मौजूद है आगे। बिल्कुल है, पढ़े आगे। यानी ये पहले मिर्जा साहब ने ये दावा करके कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, फिर इसको निगेट किया है। हाँ जी किया, करे आगे। मिर्जा साहब ने अपनी ही निगेट बात नहीं किया, नहीं निगेट नहीं किया।
मुझे इस पता ही तरह नहीं तो वो फिर वर्ड जाहिर है यूज वो कर रहे हैं, मुझे अंग्रेजी आप आती नहीं अगर है। कोई कहे कि निगेट किया तो फिर तो वो अरे तजाद चौहान आप खुद साहब मुझे मान रहे हैं। अंग्रेजी नहीं आती, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं उर्दू के बहुत वर्ड आला, यूज करें। बहुत आला। लो जी चौहान साहब नोट कर लो कि मिर्जा साहब ने ये लिख कर कि हाँ मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, आगे इसको निगेट कर दिया है। हाँ, निगेट नहीं क्या ये होता गलत है? बात है, गलत निगेट बात क्या है। होता है तारिक चौहान साहब? जी अजय तुसी अमरीका होंदे हो तो निगेट ਤੁਹਾਨੂੰ का पता मतलब निगेट होता है कि उसी बात की नफी कर दी आगे, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ऐसा ਪੇ तो नहीं ਦੱਸਦੇ है ना। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? आपके अंदर निगेट का कौन? की मतलब होता नहीं ਜਾਣ ਕੇ पता। ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ओ सर मैंने अंग्रेजी नहीं आती रही इतनी ज्यादा, अंग्रेजी आंदी मैं मिर्जा इंग्लिश साहब सीखा ने होया। पढ़ेगा अच्छा ये ये गलती का बता गाला दें, कौन उर्दू में पढ़ा है? बता गलती का दें, गाला उर्दू में बता दें कि जब मिर्जा साहब ने ये ये लिखा कि गलती का मेरा गाला ऐसा कोई कोई पढ़ेगा दावा या बस नहीं। ये छवली मारनी है? एक मिनट रेल चुप कर। हाँ जी, जब हाँ जी, उसको जब एक्सप्लेन किया आगे उन्होंने। जब मिर्जा साहब ने ये कहा कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, इसके बाद इसके उलट बात लिखी है। अगला आशियाराई ना करें। नहीं। अगला हिस्सा पढ़ेंगे तो इसके उलट बात में नजर आएगी। इसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। नहीं, इसका इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होती है? मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, नबी और आगे रसूल पढ़े होने का ना, कोई दावा नहीं। आगे पढ़े भी पता चल जाता है। भाई आगे या तो दावा होगा या नहीं होगा, आगे दावा है कि नहीं देखिए है? अमर पढ़े साहब, तो अमर साहब, पढ़े तो आगे तो पढ़े अल्लामा साहब, पढ़े तो आगे। तारक चौहान ये नहीं पढ़ेंगे, राइट साहब मर जाएंगे नहीं पढ़ेंगे, भाई मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात मौत सुनो। वाकई हो जाएगी इनकी। अल्लामा साहब मैं- आगे पढ़े, अल्लामा साहब आगे पढ़े। मतलब नहीं पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ राइट साहब आपको। इसलिए मैं कहता वो हूँ, पूछ रहे हैं उनकी बात का इसलिए जवाब मैं आप दे दें, कहता हूँ कि मैं नहीं उसको तो मैं मुंह दे मांगा देता हूँ। इनाम दूंगा जो बंदा अल्लामा एक साहब, आप भी गलती का confuse हो इजाला जाएंगे। का पढ़े, पढ़े, आगे खुलासा, पढ़े। हाँ एक गलती का इजाला का खुलासा जो बंदा मुझे पढ़ के सुना दे ना, दिल में अपने अपने लफ्जों में यानी बयान कर दे, दिल में पढ़ ले, उसको अपने लफ्जों में बयान कर दे, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं, खुलासा यही है जो आपने पढ़ दिया है, ये खुलासा यही है कि एक शख्स ने, खुलासा यही है कि उनका नबूवत का दावा नहीं है। सर आप सुने ना, आप सुने ना, अमर नबी आ ही नहीं सकता हजरत मोहम्मद हम सब सल्लल्लाहु अलैहि सुने। वसल्लम के अकबाल साहब आप भी एक गलती इस का किताब दावा नहीं लिखने पढ़े, का अल्लामा मकसद साहब ये भी था, नबूवत कुछ उनका तो गड़बड़ है कहना सर। ये वो है राइसा कि पढ़ेगा ही मेरा नहीं, ऐसा सब पता कोई यार, दावा नहीं। गजल करता है ये बंदा राइस आप साहब, दोनों में से जो अल्लाह भी अल्लाह नहीं पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है सर, गड़बड़ मैं तो है। मैं आपको मिर्जा साहब का पैरोकार मान गया हूं कि मिर्जा साहब ने ये कहकर कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, अगले ही फिक्रे में इसके उलट बात लिखी हुई है, ये कहना चाहते हैं जठवाल यही साहब। तो कंफ्यूजन है। नहीं मैं नहीं कहना चाहता, आप बकवास कर रहे हैं, आप यही अपना तो अपना confusion गन है। मेरे पीछे थोप रहे हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? आगे क्या लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने? आगे पढ़े ना, क्या लिखा पढ़े। भाई जब बंदा मैं रुक अगर तो कह जाओ देता यहाँ हूँ, पे। मैं अगर हमें कह रुक देता तो जाओ हूँ, यहाँ लेना, पे। सुन तो लेना, मैं अगर एक चीज को मुतलकन आगे क्यों नहीं इनकार पढ़ते, कर देता हूँ, ये सुन लिया कहता मैंने हूँ बार बार, ये अल्लामा सुन साहब लिया। आगे क्यों नहीं कि पढ़े? मैं लाहौर अल्लामा नहीं साहब आगे गया, क्यों पढ़े? हाँ जी, मैं कराची नहीं अल्लामा गया, साहब आगे मैं पढ़े। पाकिस्तान नहीं गया, इसके अगले फिक्रे में मैं क्या मतलब है, मैं वो शुर्ली छोड़ने लगा हूँ। अगले हाँ फिक्रे में लिखा क्या है? होगा कि मैं पाकिस्तान नहीं गया तो वो शुल्ली छोड़ने वाली बात है। आगे क्या यहाँ है? जो लिखा हुआ आगे पढ़े, यहूदियों की तरह ना अच्छा करें, एक आधा मिनट, फिक्रा एक छोड़ मिनट, दिया, आधा पढ़ सुन लें। लो, सुन लो, जो कुछ आगे लिखा हुआ है नबी के वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पढ़े, यहूद पढ़े, के माने पढ़े, हो पढ़े, जाएगी। क्या लिखा ये है? आप लोगों की वजह से क्या उम्मत लिखा हुई है? है यहूद के माने, हाँ, कि आधे पे उंगली रख लेते हैं, आधा पढ़ लेते हैं। यहूदियों ने भी वो काम नहीं किए जो हाँ जी, इन्होंने यहूद किए के हैं। माने तो वही हुए हैं यहूदियों ने जिन्होंने ये किया कि आधा पढ़ लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। किस यहूदी ने ये तारक दावा चौहान किया साहब है ने- कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन तारक बनकर चौहान आया? साहब ने अभी बात किया है, उसकी किताब का लिखने का मकसद बताया। यहूदियों ने भी नहीं ये कि हरकतें की जो आपने की हुई हैं। किसी शख्स ने अल्लामा साहब मुझे तो आप भी नबी कंफ्यूज लग रहे हो। मिर्जा अल्लामा साहब साहब, मुझे आप भी को जब कंफ्यूज ये लग रहे पूछा कि वो हो। नबी हैं कि नहीं है, तो उस बारे में तारक चौहान साहब ने एक्सप्लेन किया है उसको। अब आपने जो आखिरी तहरीर पढ़ी क्या है, एक्सप्लेन किया चौहान साहब ने? क्या एक्सप्लेन अब किया? खुलासा यहाँ पे खत्म नहीं हो गया, खुलासा आगे लिखा हुआ है। ओ भाई जो आप खुलासा, यहूदियों की अच्छा तरह खुलासा आधे ये उंगली बयान पे रख करके आगे खुलासा आधे फिर पे है। उंगली रख के यहूदियों की तरह आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे खत्म हो गया, इससे आगे नहीं पढ़ना। आगे क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा आधा मैं घंटा हो कहता गया आगे हूँ, पढ़ने मेरी से। बात सुन लो दो ना, लाइनें सवाल पढ़ते हुए मेरा शर्म सुन आती लो, है? मौत मेरा पड़ जाती है सवाल दो लाइनें सुन पढ़ते लो, हुए। और मेरा सवाल सुन लो, जो कुछ आगे अमन लिखा नजीर हुआ दो है लाइनें पढ़ते हुए मौत पड़ जाती है, उसको सवाल अपने बाद में लफ्जों में सुनेंगे। बयान कर दो, जो आगे लिखा हुआ है उसको अपने लफ्जों में अगली बयान दो कर दो। लाइनें पढ़ो ना, जो तुमने पढ़ा उसको पढ़ो आगे। आगे क्या बंद लिखा क्यों हुआ नहीं पढ़ी है? यहाँ पे? अल्लामा साहब पढ़ दें, अल्लामा साहब पढ़ दें, क्या लिखा है पढ़ दें। वो नहीं पढ़ेंगे, मर जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि आगे क्या मर लिखा जाएंगे, हुआ मर है? जाएंगे। मौत आगे वाक़ई इसके हो उलट जाती है लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने। अगली दो माइक लाइनों घर की में स्टार्ट सारी हो गई है, बरेलियत माइक की घर मौत की। क्या वाक़ई हो मुतजाद जाती है। बातें लिखी हुई हैं मिर्जा साहब ने आखिरी सफे पर जाकर? अगले दो सत्रों में इनकी बरेलियों की मौत वाक़ई हो जाती है। सच यही है जो सैनी साहब ने भी कहा और रहील साहब ने भी कहा, पढ़ने नहीं देंगे। और सैनी साहब ने एहतराम के मारे पहला मिसरा नहीं पढ़ा, मैंने पहला मिसरा भी पढ़ दिया है कि बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ,
कुछ ना समझे खुदा करे कोई, इब्ने हाँ, मरियम तुम्हारे लिए हुआ ये करे याद है। कोई, मेरे दुख की दवा करे हाँ। कोई। इसलिए अजाइल साहब ये एक गलती का ज़ाला में ये लिखा है, आगे नहीं मिर्जा पढ़ेंगे। साहब ने ये लिखा है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई, ये लिखा है मैंने। अल्लामा साहब माइक गर्दी पर आ नहीं गए पढ़ेंगे, आप। मौत वाकई हो जाएगी इनकी। और भाई इनको पूछ के रहील साहब, यार इनको पूछ के बता दो कि आगे क्या लिखा है। हो गया इस बात पे 1 घंटा बहस की है इसने। आगे कुछ भी नहीं लिखा। ये बता दो क्या लिखा है, कि मैं पढ़ूं? इतना कह दिया कि आगे से पढ़ना है। अगर आगे इसके उलट लिखा है, अगर आगे इसके उलट लिखा है तो एक ऐसा शख्स जो मुतजाद बातें करने वाला होता है वो कौन होता है? बहस करते हुए अगर लाइन नहीं पढ़ सके तुम्हें पता है ब्रेलवेज की मौत हो जाती वहां पे। भाई मेरा ख्याल है कोई चीज फटी हुई है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, इसके माइक के अंदर कोई चीज फटी हुई है, चेक कर लें। माइक ठीक यकीन है। करें आप दोनों ने और कंफ्यूजन फैला दिए, आप दोनों ने और कंफ्यूजन फैला दिए। पढ़ नहीं रहा ना, पढ़ने दे आगे उसको। कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकती क्योंकि इसका खुलासा यही है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ये अभी लगे जो 2 लाइनें आगे पढ़ दे राइल साहब, मसीह लगे जो 2 लाइनें आगे माउद पढ़ जितना दे। रायता फैलाकर गए ना उससे ज्यादा आप लोगों ने फैला दिया। हाँ, इनसे कहें 2 लाइनें आगे पढ़ दे। नहीं रहील साहब हुसैनी साहब ने आपको सही समझा दिया है, से ये बोले जाएंगे जो कुछ हुसैनी साहब ने आपको समझा दिया वही लिखा हुआ है इसके आगे। रेलवियत मर जाएगी। मसीह माउद Oh my God, सलाम oh my रायता God. फैलाकर गए। वो जब सलाम बोलते हो साथ बोल दिया करो, इनकान मुस्तहक। मोहम्मद नजीर का माइक खुल गया। जब ये ले सलाम बोलते हो ना साथ बोल दिया करो, इनकान जैसे नहीं वो कोई चीज बोल देते वैसे माइक खुल गया। अल्लामा साहब आप पढ़े ना, एक गलती का दावा पढ़े आप। आगे पढ़े, एक गलती का दावा मर पढ़े। जाएगा। अल्लामा साहब पढ़े ना, आप पढ़े। लो जी, अगर मैंने पढ़ना है तो एक शर्त पर पढ़ना है कि बीच में कोई ना बोले, मैं आगे भी पढ़ता हूँ। नहीं बोलेगा। अटवाल साहब चुप हो जाए, अटवाल साहब चुप हो जाए, पढ़ने दें उनको। पढ़े क्यों पढ़ना है? पढ़े अल्लामा साहब पढ़े। अटवाल साहब आप चुप हो जाए, पढ़े आप। यार उस बंदे की, जिस बंदे ने, मेरी बात सुनो ना, नहीं करेंगे, राइल पढ़े। साहब एक काम करें। जो बंदा 200-300 किलोमीटर सफर करके आया हो, थका हुआ हो, वो सफा खोले और नीचे से भांडों की तरह हर फिक्रे के ऊपर ची ची करी जाए हो, तो फायदा क्या मुझे पढ़ने का? मेरी तरफ से जहन्नम जाओ। आप आखिर आराई ना करें। ये एक कंफ्यूज्ड तहरीर है, कंफ्यूज तहरीर। राइल साहब, हाँ, राइल साहब आज सही नतीजा इसका निकला है कि ये कंफ्यूजिंग है सारा मामले। चले हैं। अब वो अबू जहल के लिए भी कुरान कंफ्यूजिंग है। अबू जहल के लिए कंफ्यूजिंग नहीं था भाई, ये आपके मिर्जा साहब के पैरोकार हैं जिनके लिए कंफ्यूजिंग है। इससे ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग है, चौहान साहब कुछ समझ के आप कुछ और समझते हैं। कंफ्यूजिंग है, उनको समझ नहीं आता। वो जो नहीं मानता उसको उसके नाम मानने की वजह कंफ्यूजन तो नहीं ना होती। कंफ्यूजन है। ये जो मिर्जा साहब ने लिखा है ना, इसका नतीजा यही है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई, हाँ जी, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। पढ़े आप, पढ़े अल्लामा साहब पढ़े आप। आशियाराई ना करें, पढ़े। आशियाराई ना करें, आप पढ़े। इसको म्यूट करो, इसको म्यूट करो, मैं पढ़ देता हूँ। अटवाल साहब पढ़ने दें उनको, आगे पढ़ने दें। ये आप म्यूट पढ़ें, लगाया, मैं पढ़ दूंगा वरना नहीं हाँ, पढ़ूंगा। पढ़े आप। आशियाराई ना करें, पढ़े। पढ़े अल्लामा साहब, आशियाराई ना करें, पढ़ने लगा, होल्ड रखे। अगर इसने माइक बीच में, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। वो मैं नहीं कंफ्यूज, मुझे तो पता है मिर्जा साहब ने क्या लिखा हुआ है। मैनू भी पता है की लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़े, आप अपनी दिल की तसल्ली कर लें पूरी। लो जी, सुनो जी, सुनाओ जी। अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी और रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। मैं इस तौर से जो वो ख्याल करते हैं, ना नबी हूं ना रसूल हूं। किधर गया भाई? कंटिन्यू करें। हाँ, मैं इस तौर से जो वो ख्याल करते हैं, ना नबी हूं ना रसूल हूं। हाँ, मैं इस तौर से नबी और रसूल हूं जिस तौर से अभी मैंने बयान किया है। अब इसका तीनों चारों फिक्रों का जो मैंने पढ़े, सुन ले। रुके अल्लामा साहब, रुके। अभी पीछे मिर्जा साहब कह के आए हैं कि मेरा कोई नबूवत का दावा नहीं है, मेरे जाहिल मुखालिफ है। अभी आप क्या कह रहे हैं?
کہ میں اس طور سے نبی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ इसका मतलब मैं यही तो मैं रखने लगा हूं ना। کنفیوژن ہے نا. हाँ, ये जो उन्होंने कहा है ना कि मैं इस तौर से नबी और रसूल हूं जिस तौर से मैंने अभी बयान किया है, इसका नतीजा तो यही निकलता है ना कि वो ये عائشہ कहते رحمہ हैं, کریں، सुन عائشہ तो رحمہ लेना کریں، پڑھیں عائشہ رحمہ यार, کریں. आशिया रही, इसको समझना कि नहीं समझना जो लिखा हुआ है? نہیں سمجھنا، آپ جو لکھا ہے نا وہ پڑھیں. नहीं समझना तो चुप करके बस पढ़ी जाओ, इन्हें ہاں पढ़ी پڑھیں जाओ, پڑھیں. عائشہ لگی رحمہ जाओ تو کریں لگی پڑھیں. जाओ. راہیل ان کو بولنے تو یار وہ بات تو اپنی پوری کریں پھر بعد میں کوئی بولے ٹی سی انکل تسی بھی اگلے کی سلام بات تو پوری آ سنو جاؤ. تسی بھی آ جاؤ ٹی سی انکل. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اگلا حصہ پڑھیں, اگلے حصے میں مرزا صاحب نے یہی کہا ہوا ہے کہ مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں, اس کے آگے لکھا ہوا ہے میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں. مطلب ہاں میں اس تشریح طور سے صحیح نبی اور شرعی. رسول ہوں, ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب جس طور سے اپنے آپ کو نبی اور رسول مانتے تھے وہ مدعی نبوت نہیں ہوتا, وہ مدعی رسالت نہیں ہوتا, ورنہ وہ ہاں یہ نہ بالکل لکھتے. یہ درست نتیجہ نکالا. ہاں وہ یہ نہ لکھتے کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, پھر وہ کہتے دعویٰ میرا ہے, اس طور سے میرا دعویٰ ہے, اس طور سے میرا دعویٰ نہیں ہے. پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں, میرا دعویٰ نہیں ہے نبوت اور رسالت کا. یہ جو آگے انہوں نے کہا ہے نا کہ اس طور سے میں ہوں اس طور سے نہیں ہوں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس طور سے ہونے سے بندہ مدعی نبوت نہیں بن جاتا. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ نادان دوست سے عقل مند دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے. عامر نذیر عقل مند دشمن ہے, اس کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے. جزاک اللہ. ہون کتنے نے ٹی سی انکل تو پھر آپ 50 سال تک آپ بھی کنفیوز ہی رہے نا جماعت کے اندر. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں میں خود جاہل مخالف تھا جاہل تھا. نہیں بھئی, یہ تحریر ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بیان کریں یا اس سے کچھ نتیجہ اخذ کریں, ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ان کے میرا عقیدے اعتراف پہ یہی زیادہ پڑھ دیا نا, یہ مسئلہ ہے. میرا سوال یہی تھا, کیا نام ہے آپ کا ٹی سی انکل, میرا سوال بھی یہی تھا نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم ان کے نبی ان لوگوں کے لیول تک کیوں پہنچیں؟ ان کے نبی کو مرزا صاحب علیہ السلام نے کیوں شادمیت کی؟ لو جی, مرزا رانا صاحب راشد نبی صاحب نہیں جواب تھے. دینا چاہتے ہیں. حسینی صاحب موجود ہیں؟ حسینی صاحب, رانا راشد صاحب کہتے ہیں میں جواب دینا وا. علی احمد صاحب اگر تسی موجود ہو تو چکے ہو انہوں نے. رانا راشد صاحب دا جواب جڑا وہ بھی کنفیوزڈ ہوئے گا, ویکھو تسی کیونکہ رانا جواب راشد بھی دیکھی, کنفیوزڈ ہے. صرف اینا مینوں جواب لے دیو کہ اے جڑا اگے مرزا صاحب نے لکھیا ہے کہ جو جس طور سے میں نے ابھی بیان کیا اس طور سے میں نبی اور رسول ہوں, اس طور سے نہیں یقین ہوں کریں جس یہ طرح سن سے. کر میں اور کنفیوز ہاں, کیا یہ اس کا کوئی یہ نبوت اور رسالت نہیں ہے. کیا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب مدعی نبوت اور رسالت ہیں؟ اگر ہرگز نکلتا نہیں, ہے تو پھر ہرگز مرزا نہیں. صاحب نے کیوں یہ لکھا ہے کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں؟ پھر کیوں لکھا ہے؟ یہ سن کر تو اور کنفیوز ہو گیا سر. یہ سوال ہے میرا, نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں کہ جو بندہ آئے اس کی وضاحت کرے, ان سے صرف اتنا پوچھ دیں کہ یہ جس طور سے انہوں نے خود کو نبی رسول کہا ہے اس طور سے اگر بندہ ہو تو وہ مدعی نبوت ہوتا ہے, پھر اس کو کہا جا سکتا ہے اس کا نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہے. اگر کہا جا سکتا ہے تو مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, جاہل مخالف مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں, اگر یہ کہا جا سکتا ہے تو مرزا صاحب تو پکے جھوٹے قرار پان گے. پکے قذاب. اینا 4 لینا تو یہ انہوں دا فیصلہ ہو جائے گا. جی ہاں. سینی صاحب موجود ہو؟ نہیں, وہ موجود علی ہیں. احمد صاحب موجود ہو؟ علی احمد صاحب رانا راشد نو چک لینا, وہ کہندے سی میں آ کے سمجھانا. ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਵੱਟਦੇ مجھے ਨੇ. بتایا نا مرزا صاحب کا الہام ہے واللہ واللہ سیدھا ہویا اولا, اس کا ਯਾਰ مطلب بتائیں کیا ہے؟ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹਲਾ.
अस्सलाम वालेकुम। पुटी गई, पेट फट गया, रहील साहब, आप बीमार बीच में चीजें मत मारता बोलिएगा, है, मुझे वो बात वाले करने भी दीजिए। लाम इस कुत्ते का रहील आखिरी साहब, दम है, इस कुत्ते का आखिरी दम है। हाँ अच्छा, आप मुझे ना बात करने दीजिएगा, आप ना बोलिएगा बीच में। चौहान साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मुझे बात करने दीजिएगा, मेरी बात के दरमियान मत बोलिएगा। गाला दा मुका नहीं, कोई हमें गाली नहीं दूंगा। म्यूट कर लिया जी, असी तो तुसी बोलो। गाला कड़ी जावेंगी। नहीं, कोई गाली नहीं निकाली जाएगी, कोई गाली नहीं। अच्छा, बात ये है कि हम फॉर द टाइम ऑफ द सेक ये मान लेते हैं जो भी आपने कहा। हम मिर्ज़ा साहब की हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़ार दरूद व पाक उन पर, जो कि खुदा के सच्चे इमाम हैं, खुदा के सच्चे नबी हैं। हम आपकी बात मान लेते हैं कि उनका इस तहरीर से नबूवत का दावा नहीं है। लानतुल्लाह। जी, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जी, तो अब देखिए, मैं आपको इसका असूली आमीन जवाब देता हूँ। आमीन आमीन, बहुत आमीन, अच्छा आमीन, किया, बहुत आमीन। अच्छा किया आपने। ये अच्छा, कहा करें। आमर मेरे दरमियान में ना बोलें तो अच्छा, फिर आप बोल लीजिएगा। नहीं, आप ये जो ज्यादा इरिटेट करने के लिए दूसरे को हमें तंग उस अली करेंगे साहब तो ने फिर- इजाजत दी है ना, भाई इसलिए। इजाजत दी है तो कौन आपको मना कर? मेरी ब्राड तो नहीं, मैं तो नहीं मना कर रहा, लेकिन अब मुझे इससे पहले provoke आप करने के गुस्ताखी लिए कर चुके हैं काफी ज्यादा। ये अगर अभी। मेरे मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या गुस्ताखी की है। प्रोवोकेशन के लफ्ज पहले मैं बोलेंगे ना, जवाब दूंगा, पहले मैं जवाब दूंगा। और मेरा राणा जवाब साहब इतनी रिकॉर्ड हल्का करना। बात लगाने की क्या जरूरत है? राणा साहब, आप ज्यादा बात provoke करो। करेंगे मैं तो तो साहब मैं करेंगे। करूंगा। करें बात, गाला करें जल्दी। बात कर लेने दें, असूली बात। रहील से मुझे बात कर लेने दीजिए। बात यह है कि मिर्जा आप साहब गाला का करें अगर जल्दी ये से, पूरा- गलती का जो भी हुई है। अच्छा, मुझे 1 मिनट लगा दें या 1 मिनट में ना बोलें आप प्लीज। अगर देखें रहील साहब, आप काफी बात कर चुके हैं, दूसरों को भी मौका दें, ऐसे तो ना करें ना। इनको आप 1 2-3 मिनट लगा घंटे से दें, यहाँ अली मौजूद अहमद हैं, साहब, इनका आपने टाइम बात बता की, दें। अब थोड़ी देर खामोश हो जाए, मुझे और आमर साहब को बात कर लेने दें, कोई मसला तो नहीं है, हम भी तो खामोशी से सुनेंगे ना आपकी बात पे। आपने गालियां और कुछ भी नहीं करना। दूंगा, नहीं दूंगा, फिक्र ना कर, मैं गाली नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं ना, जैसे गाली दूंगा आप बोल दीजिएगा, ठीक है? लेकिन इतना हौसला तो रखें ना, आप हमारे अहमदी भाई हैं, तो अब अहमदी की बात तो सुन लें। बात यह है, जो भी नतीजा निकलता है इस रसाले से, पहले तो मैं असूली बात बताता हूं। अगर हम तारक चौहान साहब की भी मैं बात मान लेता हूं, बात तो यह कि हम मिर्जा साहब के मानने वाले हैं ना, उनकी हर बात पर ईमान रखते हैं। अब इसमें हमारे 2 ग्रुप्स हैं, बेशक। अब इसमें हो सकता है आपको भी सवाल, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। हमारा जो मौक़िफ़ ये है कि मिर्जा साहब ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते थे। और इसका एक और हवाले में पूरा जिक्र आयत ख़ातमुन नबीयीन का मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इसके हमें आयत ख़ातमुन नबीयीन को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ में। बात यह है कि हम हर किस्म की इस चीज़ को मानते हैं कि ये आखिरी शरीयत है, अब दुनिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई शरीयत नहीं आएगी। लेकिन मिर्ज़ा साहब को मुकालमा मुखातबा इलाहिया हुआ और कसरत से हुआ, जिसका जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की, उन्होंने कहा कि मुझे ये सब अतात में मिल रहा है कुरान पाक की आयत के मुताबिक। 1 मिनट हो गया राणा साहब। यार खामोश हो जाओ, मैं कह रहा हूं, मुझे बात करने दो। तुम सुबह शुरू से बोल रहे हो, तुम मुझे बात करने दो, मैं पॉइंट की मिनट बात वैसे कर रहा हूं आपने ना। कहा था, अगर आप 1 मिनट निगेट पूरा हो करेंगे गया, तो और कर 1 लेना। मिनट, और और एक 1 मिनट मौजूद है इधर, और 1 मिनट बोल रहे, और 1 मिनट बोल रहे हैं। लेकिन 1 मिनट आपने कहा था, 1 यार मिनट हो रहील गया। मेरी बात सुनो, तुम एमडी हो, तुम जरा सब्र राणा कर, साहब, जो सवाल बात मैं करने करूंगा दो। ना। अगर तुम्हें इतराज हुआ मैं गाली निकालूं तो तुम मेरा सवाल सुन लें आप। अच्छा बताओ, सवाल क्या है तुम्हारा? मेरा सवाल सुन लेना, जी, और मेरा बताइए। सवाल सुन लें। जी बताइए। जी, राणा साहब मुझे ये बताएं कि अगर मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को ये शातमियत करते हैं, तौहीन करते हैं, गाली देंगे, ये गैर अहमदी गालियां देते हैं, तो हमारा ये मिजाज बनता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के ऊपर जाएं? नहीं, उनकी शातमियत कभी भी करें? नहीं, सारी कभी भी जमात नहीं, हो ही नहीं सकता। हमारी जान भी कुर्बान कभी है कंडेम हुजूर भी नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि कभी। वसल्लम पर। हमारी जान कुर्बान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है? अच्छा, हाँ, अब मुझे थोड़ा सा जवाब देने का अब ये मौका मुझे दे दें, बताएं जवाब कि देने का ईसाइयों मौका ने दे दें। जब तौहीन करी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुन लेना, अच्छा, वो सुन लेना, उस सवाल मौजू के मेरा बाद नहीं में है। आते, पहले सवाल तो गलती दूसरा का ऐसा है अजाला ना को अभी, दूर कर लेना। सवाल तो दूसरा ऐसा है। रहील, नबी का सुन ले राहील सवाल मेरी तो बात दूसरा सुनो, ऐसा तुम्हें है। बोलने की बीमारी सुन लेना, है। सवाल सुन तुम लेना। 4 घंटे से इधर बैठ के बोल रहे हो। नहीं राणा साहब, मेरा सवाल सुने आप। नहीं, मेरा सवाल राहील, सुन पहले लेना। एक गलती सवाल का सुनने के बाद अजाला को बोलिएगा। मुकम्मल कर लें। आप 5 मेरा 2 सवाल मिनट सुनने बाद के मैं बाद तुम्हारा सवाल का जवाब दूंगा। आई प्रॉमिस यू। मेरा सवाल सुन ले। नहीं, तुम मौजू को तब्दील कर मेरा रहे हो सवाल मेरे सुने, भाई। उसके बाद आप बोलें। एक गलती का कंटिन्यू अजाला के बोलो, बारे में मेरा सवाल सवाल सुन लो, आपका? फिर कंटिन्यू बोलो। एक गलती का अजाला मेरा के बारे में सुनिए। सवाल है। जब
जब ईसाइयों ने सुने ये गलती का हवाला पे तो बहुत कंफ्यूजन है और फैला देंगे यार आप। पहले मुझे इसका जवाब मैं देने आया हूं, मैं तुम्हारा सवाल नहीं सुनने आया। ये आप जरा वेट कर लेना अपने सवाल के लिए। इखलाकियात भी कुछ चीज उसके बाद यार, इखलाकियात कोई चीज है कि एक मौजूद चल रहा है बीच में, किस जिहत से आप अपना सवाल रख रहे हो, ये मुकम्मल हो जाए। आपका सवाल हाजिर है मेरे पास, शुरू कर दिया माइक कर मैं दिया। हाजिर हूं आपके सवाल के लिए मेरे भाई। मैं कह रहा हूं सुने ना, आपको, फिर सुने, मुझे सुने, इस सवाल का सुने। जवाब दे लेने दे मेरे भाई, प्लीज। आई रिक्वेस्ट सवाल यू, सुने मेरा। आई रिक्वेस्ट यू, मेरा हम्बली सवाल रिक्वेस्ट सुने, यू। म्यूट लगाए। राहील मेरी बात सुने, मुझे इस सवाल का जवाब दे लेने दे जो आमर साहब से मेरा चाह रहा है। आप अपनी बारी का इंतजार कर लें, अखलाकी मोहम्मदी का मुजाहरा करें प्लीज। ठीक है, ठीक मैं है, आप ये नहीं कह रहे मैं आपके सवाल का जवाब दिए बगैर भाग जाऊंगा। मैं कब कह रहा हूं ये आपसे, मैं दूंगा आपका जवाब, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दावा है ना, दावा उम्मती नबी होने का है जिल्ली और बरूजी तौर पे। अब इसमें आप इसको कह लें कि ये नबूवत नहीं है या है। हम ये समझते हैं वैसियत कि ये एक नबूवत तो है, लेकिन ये ऐसी नबूवत नहीं है जो डायरेक्ट मिली है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उनका मिशन यही था कि उसी मिशन को पूरा करना है। लेकिन आप एक ऐसे गंदे बदबूदार इंसान से पूछ रहे हैं जिसने अभी मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, जो शातमे अली है। ये गंदा इंसान स्पीकर लगाता है, इसकी ऐसी की तैसी, इस बंदे की ऐसी की तैसी। तू भी चुप कर रहा कतूरे, चुप कर जा, तुझसे मैं डरता हूं तेरे जैसे गंदे मुनाफिक इंसान से। ये जो बदबूदार इंसान बैठा है, जिसको हुसैनी साहब की गोद में लेके बैठे हैं, इसने स्पीकर लगाकर, मैं आज ये चैलेंज करता हूं इस गंदे बदबूदार को, एक गलती का अजाला आधा सफा पूरा पढ़ के सुना दो। तू बदबूदार, ये मसीह बदबूदार साहब, उम्मत मुस्लिमा के गद्दार। मैं कोई गाली नहीं निकाल रहा, उम्मत मुस्लिमा के अभी राहील ने यही कहा था कि आपने गाली निकालनी है अभी। इंसान, इसने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को गाली दी है अभी, इसने कुछ दी नहीं है। कहा भाई, तब मेरे जवाबी तौर पे कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपने गलत बयानी की है। इसने स्पीकर लगाया, इसने उन पे तंज किया, इसने पूरी तहरीर नहीं पढ़ी। इस तो जाली आपने तो इंसान बयान करना था, इसमें क्या लिखा हुआ ये है? आप पता नहीं किसी खंजीर और है, के ऊपर पढ़ खंजीर है, बदबूदार है। मैं कहता हूं, मैं गाली नहीं निकाल रहा, कुरान में लफ्ज आए हैं ये सारे। मैं कहता हूं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, इस झूठे शख्स की मुनाफिकत पे लानत। रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। अगर ये बात करना चाहता, मैं चैलेंज करता हूं, एक गलती पे अजाला पे आके, मेरी ब्रॉड पे आके मुझसे बात कर ले, आयत खातम नबीन पे मुझसे बात कर ले, ये बंदा मेरी ब्रॉड पे आए। राणा मैं साहब, चैलेंज आप करता हूं ऊपर आए इसको। थे कि आपने कहा था मैं एक गलती का मैं ज़ाला इसको जवाब देने आया था। आप तो गालियां इस निकाल बंदे रहे को हैं उस वक्त। मैं अपने ये अल्फाज पे आपकी शर्मिंदा अखलाकी नहीं हूँ, मिर्जाइयत है। गाली है तो ये क्या आपका जो अखलाकी करना है मिर्जाइयत कर। है। मैं आप सच गालियां बोल निकाल रहा रहे हैं। हूँ, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मुनाफिक शख्स है ये अखलाकी मिर्जाइयत कोई इखलाक नहीं, जवाब में हक है हमें। चुप करके बैठा हुआ, आप उसको गालियां कोई निकाल चुप रहे हैं। नहीं बैठा, तो शर्म है, उतारो अब। बदबूदार इंसान है, कोई गाली नहीं है, सच है। इसने एक गलती का ज़ाला को फिर भी पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ के दिखाए, चैलेंज है मेरा। पढ़ तू इसको, पढ़, उठा माइक, पढ़ के दिखा अपनी बात। क्यों तूने अपनी बात उसमें डाली? लगता है Who the हार्ट hell अटैक are करा you? के जाएगा इसने राणा आज। अपनी हाशिया राई की कि नहीं की? राणा साहब, टीसी ठंडा अंकल, पानी पिए, टीसी आपको हार्ट अंकल, अटैक हो जाएगा, एक हॉस्पिटल जाना मिनट, पड़ तारिक जाएगा। चौहान साहब, इसने पूरी नहीं पढ़ी ना, पढ़ के दिखाए। मैं चैलेंज करता हूं इसको, माफी मांगूंगा यहीं पर। पढ़े पूरी तहरीर अल्फाज के बगैर। मेरा चैलेंज है, यहां पर बैठा हूं मैं। पढ़, उठा माइक, उठा। इतनी हिम्मत है तो खोल माइक। वाह। नहीं, मिर्जाइयों साहब, में इस बंदे ने नहीं पढ़ी मिर्जा तहरीर। महमूद साहब ने कहा था कि मुझे मैं सिर्फ यहाँ पागल पर चाहिए, दूसरी आईडी तो से हर सुन मिर्जाई रहा जो है था। वो अपने आप को पागल साबित करता है। मैं यहाँ पर हैरानी की दूसरी बात है। आईडी से सुन रहा था। इस बंदे ने वो हर मिर्जाई तहरीर खुद को नहीं पागल पढ़ी। साबित करता है यहाँ। वो जो बेचारा शरीफ इंसान, दूसरा वो आदमी आराम से बैठा हुआ था, पागलों की तरह उसको फिर इसने गालियां निकाली। माइक गर्दी की। माइक गर्दी, हमारे पास भी माइक है। हाँ, मेरी ब्रॉड पे चैलेंज है मेरे। चलो, हाँ। और तुम्हारी ब्राड पे आगे यहाँ पे जो तुमने बम हाँ। चलाना है चला लो। मेरी ब्राड पे चैलेंज है। हाइड्रोजन खातम बम जो नबीन पे लेके बात फिर रहे कर, हो, वो तू चला लो यहाँ पे। मुझसे बात कर, गालियां आयत निकाल खातम रहे हो उस नबीन वक्त। पे कोई कर दलील बात। तुमने नहीं दी। आयत तुम बता खातम रहे हो कि नबीन पे तुम्हारी मिर्जाइयत कुरान की यही रूह है से बात कि करेगा। तुम बता। एक आदमी को जो चुप करके बैठा हुआ है, तुम उसको गालियां निकालो। चुप बैठा है, मैं सुन रहा था इधर, ये चुप बैठा था।
चुप करके उसने बैठा हुआ पूरी है। तहरीर नहीं पढ़ी, अपने हंसी तो ठट्ठा भाई उड़ाया तो इसने। फिर उसको गालियां को निकाल रहे हो? मैंने क्या गाली तहरीर निकाली है? पूरी नहीं क्या पढ़ी, गाली तो निकाली गालियां देनी है? है। लानतुल्लाह अल काज़िब। शुक्र है किसी क्या ने गाली म्यूट है? किया है ना। क्या गाली है? क्या गाली है? लानतुल्लाह अल काज़िबीन, मुनाफिक, झूठा इंसान है ये। क्यों नहीं बोल रहा? अब मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? पागल है, पागल का क्या जवाब दे? मैं क्यों ना इसको करूं? मैं तो इसको गाली दूंगा। मैं मिर्जाई दूंगा पागल, इसको। आप पागलपन आपका ठीक है, मजाक कह कर ले रहे हैं। पागल, मुझे कहें आप कि जो मर्जी मिर्जाइयत कहें। पागलपन मुझे है, उसके कहें अलावा पागल, कुछ मैं नहीं। हूं पागल। दलील चूंकि मैं अगर अपने इश्क होती में पागल हूं तो आपको उनके। दलील देते। आपके पास सिर्फ मेरे गालियां से हैं। दलील से कर बात, पढ़ सिर्फ तहरीर। गालियां आप देने आए हैं ऊपर। ये अच्छा, तारक आपको चौहान साहब, मुसीबत गालियां नहीं दी, मेरा अपना डंके कोटा की पूरा कर चोट पे चैलेंज है, ये पूरी तहरीर आपका देनी खलीफा पड़ेगा। बार बार कहता है और मिर्जाइयों गालियां ना दो। आप खलीफा की एक नहीं मानते। मैं बता देता हूं आपको, मैंने कोई खलीफा गाली कहता नहीं है इसको गालियां दी। ना दो मिर्जाइयों, पर मिर्जाई मेरी बात ऐसे सुनो। खबीस है, खलीफा को कहते बोल दिया, मैंने हमने तेरी अच्छा, बात तारक मानी। चौहान साहब, तारक चौहान साहब, इतनी मैंने ठंड इनको आपको गाली नहीं पड़ती गालियां निकाल के। दी। मेरी बात सुने, मैं इल्मी तौर पे बात करने को तैयार हूं हर जगह पे, ऐसी कोई बात तो नहीं। भाई तैयार है तो फिर आपने जवाब ये देना था ना, तो मुनाफिकत गालियां और निकाल गंद रहे हैं। करता है ये इंसान, कितने और सबूत भाई दूं? इंसान को छोड़ो, वो मिर्जा हुसैनी साहब का साहब मुखालिफ है, ये बंदे हैं, इसके ऊपर उनको क्यों नहीं आप पता। डाल रहे हैं? हुसैनी साहब को अपनी बुराड़ चलानी है इसकी खातर। ठीक है, ब्रॉड- हम उनके साथ भाई हैं, आपकी मर्जी चाहते ना है। हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन ये वो कुछ बंदे ने कह ही फिर नहीं रहा क्यों पूरी किसी को, तहरीर नहीं चुप पढ़ी? करके बैठा हुआ बताएं है। मुझे। गालियां तो चले, आप निकाल रहे हैं। मेरी बात सुने, इसने अपने इखलाक का हाशिया मुजाहरा राय कर की, रहे हैं, मिर्जाई ऊंचा इखलाक पढ़ा, फिर पूरी तहरीर नहीं पढ़ी। इसकी जुबान कट जाएगी पूरी तहरीर पढ़ते हुए। पढ़े, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पढ़े, मैं म्यूट होता हूं, पढ़े तहरीर। अपने अल्फाज ना दाखिल करे बीच में। अगर इंसान का बच्चा है और मुसलमानों का आलम है तो मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज आप कर रहा हूं जैसा इसको। पागल ही है, 15 मिनट से सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं। ओके, मैं ये गालियां पागलपन की निशानी है कि नहीं? मैं अच्छा, अगर मैं गाली दे रहा हूं ना, अल्लाह ताला मुझे पकड़ेगा और उसकी सजा देगा। मैं इस बंदे को चैलेंज कर रहा हूं, ये तहरीर जहां से शुरू होती है आखिर तक पढ़ दे बगैर हाशिया राई के, एक टोन में मैं माफी मांगूंगा गालियों की, अभी माफी मांगूंगा सबके सामने। मेरा चैलेंज है, मैं बैठा हूं इधर, पढ़ के ओ दिखाओ। राणा अभी क्या मिर्जाई करेंगे साहब, वो हुसैनी आपके साहब? बाप का सबको नीचे नौकर है कि वो उतारेंगे। आपकी हुक्म के मुताबिक अमल करे? क्या आपका अकल से आप चैलेंज बिल्कुल है पैदल मेरा, हो चुके हम हैं? इसके हुक्म के गुलाम हैं, हम इसके हुक्म के अकल से गुलाम हैं। पैदल हो चुके हैं आप बिल्कुल। हाँ, हो चुका हूं। पढ़े, मैं कैमरे में आऊंगा, पढ़े। मेरा चैलेंज है, आराम से इसको चैलेंज है इस बंदे। यार इनको अकेला छोड़ दें, ये राशिद भाई इनकी तबीयत खराब हो जाती है, ना करें इनकी, ना चढ़े किनकी मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है भाई। अच्छा अली भाई, आप आपके बताइए लहजे से मुझे, पता चल रहा है आप मुझे थोड़ा खराब कश्मीरी भाई, मैं सुन रहा था दूसरी आईडी से, इस बंदे ने दजल किया ना जब, और गुस्ताखी भी की इसने, मैं बता दूंगा, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, यहीं पर गुस्ताखी की इसने 2 दफा। तब मुझे गुस्सा है, जब हमारे काबर की गुस्ताखी करेगा गुस्सा आएगा ना। ठीक है, मेरा चैलेंज है कि तहरीर हुसैनी पढ़े, साहब इल्मी मेरी मुकाबला करें, स्क्रीन बड़ी की जावे। करे इल्मी मुकाबला करना है तो बैठा हूं ना मैं, अली करे अहमद इल्मी साहब मुकाबला। मेरी स्क्रीन बड़ी की मेरा ख्याल है जावे। राणा साहब और राहिल साहब कोई लड़के आए थे, वो सवाल कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो उसकी वजह से शायद। तो उसकी कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे। ऐसी ये बात भाई नहीं। मुंह मांगा इनाम है, एक गलती का जाला लिखा हुआ है। इस 12 सफ़े के रिसाले का खुलासा बयान करने वाले को मैं करूंगा, आमर नजीर की तरफ से मुंह मांगा इनाम दिया जाए। मैं करूंगा, मैं म्यूट करता हूँ, करें खुलासा बयान। मैं ये करूंगा। तो आपने दे आप लिया। मेरा चैलेंज कबूल करते हो तो मेरा चैलेंज को, मैं तो तुम्हें आप कहना यार दिल नहीं करता, अल्लाह नहीं ना कहें मुझे, लेकिन इसका मैं खुलासा मुनाफिक बयान नहीं करें। हूं। मैं म्यूट लगाता हूँ, मैं तुमसे बड़ी मैं मोहब्बत म्यूट करता था लगाता पहले। हूँ, मैं म्यूट लगाता अल्लाह हूँ। की खुलासा कसम बयान। उठा के कहता हूँ, जब आपका ये मकरू चेहरा देखा ना, बड़ी नफरत होगी। मैं पहले बड़ी मोहब्बत करता था, तुम्हें अपनी ब्रॉड पे भी लेता था, इज्जत देता था, लेकिन जब आप गुस्ताखी करते हो हमारे अकाबरीन पर, आप मेरा मुंह चैलेंज मांगा कबूल करते टाक हो? मास्टर साहब, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आप आके कर दें खुलासा बयान। मैं करूंगा, मैं इनमें कर से दूंगा। कोई भी नहीं खुलासा बयान कर सकता। उसके बाद क्या गारंटी है कि आप कहेंगे ये गलत है? आप तो कह देंगे गलत है। पर जाहिर है जो तहरीर के अंदर लिखा उसके खिलाफ बयान करना है आपने। मैं खिलाफ नहीं करूंगा। गलत बयान करेंगे तो गलत ही कहेंगे उसको। हाँ, आपने सिर्फ बयान करना है, गलत बयान करके तो मुंह मांगा नाम लेना मुझसे। और मेरी चैलेंज पे क्या बनेगा जो आपको दिए मैंने? आप तहरीर पूरी पढ़ दें आखिर तक, वहां से लेके बगैर हाशिया रह के एक टोन में। मैं आपसे भाई माफी इतना मांगू। मेरे सांस क्या नहीं माफी है। मांगू? तो देखा? भाई यहाँ 10,000 दफा ये एक गलती का जाला के 12 सफ़े 1200 दफा पढ़ आमर चुके हैं। साहब इतनी हिम्मत नहीं है तो मैदान अगर में ना किसी को उतरे। समझ आती होती तो अली रहीला भाई के सुन क्यों ले, कहता। कश्मीरी भाई सुन ले, नहीं पढ़ेंगे। मेरा चैलेंज है, मैं क्या गाली दे रहा हूँ?
چیلنج کر رہا ہوں نا آپ کو, بیٹھا ادھر پڑھ کے سناؤ. رحیل آ کے کیوں کہتا کہ یہ سمجھ نہیں آنے والا رسالہ, کچھ سمجھ نہیں آتی کوئی مرزا صاحب نے بات کیا نہیں, لکھا کوئی ہے. بات نہیں, کہہ سکتے ہیں, ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کی, ہم ان کو ٹاک سمجھائیں گے, ماسٹر صاحب تسی آ کے اتنے بیان کر دو, تسی نام لے لو آ کے, ہم سمجھائیں گے ان کو, میں سمجھانے سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. منہ مانگا رانا صاحب جواب دوں گا میں سمجھانا اس کو. شروع کریں نا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ پرابلم بیان تب کریں ہوتا ہے خلاصہ. جب یہ بندہ حاشیہ آرائی کرتا ہے. وہ بندہ نہیں کر رہا, آپ کے پاس مائک ہے, آپ بیان کریں. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਸਾ ਬਿਆਨ کرو. اللہ کا شکر ہے میں اس رسالے کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سارے کلام کو, قرآن پاک کا جو پیغام ہے اس کو سمجھتا ہوں. اے ویکھو بڈھے سٹیزن نے, اولڈ سٹیزن نے تھلے کی لکھیا ہے, میری توبہ, توبہ لکھن دی بجائے جان کے توبہ لکھیا ہے. ویکھ لو پھر کہن گے کہ اولڈ سٹیزن جڑے نے اے نہیں کردے مستیاں. اے ویکھ لو کی لکھیا تھلے نا, اتنا ہے ادب سے آپ وہ آدھی مستیاں نہ کرو ٹاک ماسٹر صاحب, باز آ جاؤ, تھلے بہ کے مستیاں نہ کرو. توبہ جڑی ہے